जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ बेटा। कहता कि मैं ना बाथरूम जा रहा है, मेरे को ना रेड कलर का बाथरूम आ रहा है। मैं क्या? मैं दिखा, कहते जैसे ब्लड आ रहा है। मैं बड़ी घबराई। मैं बेटे अब जब आएगा मेरे को बताना। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਤੀ। ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬ 'ਚ ਦੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਬ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ करो ऐसे टेस्ट। ਉਹਦਾ 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट में उन्होंने फ़ोन किया, जी मैम इसके तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, इसका जो ब्लड है वो सानू कल्चर करना पैना है। मैं कि डॉक्टर साहब नाल गल कर लैंदी हां। डॉक्टर साहब कहंदे हाँ हाँ कोई गल नहीं, करवा लो। उपर ओहदी रिपोर्ट 3 दिन च आंदी है। पर प्यारी संगत जी, जय गुरु, शुकराना गुरु जी, माफ़ करना। मैं गुरु जी दे अगे लैके बैठ गई। मैं गुरु जी नहीं, इस बच्चा तो तुहाडा कुछ ना निकले, ऐसा छोटा जिहा बच्चा है ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਦਿਓ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੇ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੋਣਾ। वो कहता सी बच्चे ने इत्थे भी क्या कि नानी जब मैं वॉशरूम में गया हूँ, हल्का सा एक ना ब्लड का क्लॉट निकला है। डॉक्टर ने यही दसा, वो कहता जी हो सकता कोई स्टोन भी निकल गया। पर डॉक्टर ने की करना सी, मेरे गुरु महाराज जी डॉक्टर बड़े वड्डे, उन्होंने सब कुछ ओहदा अंदरों ठीक करता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जी
प्यारी सत्संग जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। मुझे कुछ नहीं पता, गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। मुझे रोज मैसेज आते हैं, बेटी शुक्राना कर। वैसे गुरु जी के बारे में मैंने काफी सालों से सुना है, पर मैं करीब 6-7 साल पहले जालंधर गई हुई थी अपनी बड़ी बहन के यहाँ। वहाँ मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर गई थी जालंधर वाले। उन्होंने पूछा कि साथ चलोगी? मैंने कहा चलो, चल लेते हैं, ठीक है। पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब गुरुजी के दर्शन करके और वहाँ पर चाय प्रसाद लंगर के बाद वहाँ सबको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मुझे गुरुजी का येलो ड्रेस वाला बड़ा स्वरूप मिला। शायद मंडे का दिन होगा ब्लेसिंग डे, मुझे याद नहीं संगत जी। अब मैंने सोचा मैं कैसे ले जाऊं इसे, इनके स्वरूप को। हमारे यहाँ तो कोई इनको मानता भी नहीं है। तो मेरी बहन आंटी ने कहा तू स्वरूप को दरवाजे के पीछे लगा ले या अपनी अलमारी में लगा देना। पर मैंने पता नहीं क्यों मना कर दिया और उनको दे दिया कि तुम ही रख लो। इतनी मंद बुद्धि थी मेरी कि मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी एक्सेप्ट नहीं की। मुझे मिली हुई चीज है और मैंने उसे अपनी ब्लेसिंग लौटा दी। मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान थी। बस मैं क्या बोलूं मैं। सॉरी गुरुजी। अब मैं अगला सत्संग शेयर करना चाहूंगी। काफी साल बीत गए, मेरा बेटा गुरुजी को मानना शुरू कर दिया क्योंकि उसके फ्रेंड्स सारे मानते थे गुरुजी को। अब वो रोज गुरुजी के मंत्र लगाना मोबाइल पर, और अगर गाड़ी में भी कहीं जाएंगे तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र लगा देता था। धीरे धीरे मैं भी सुनने लग गई, गुरुजी की तरफ खिंचती चली गई। सत्संग सुनने लगी, अमृत वेला भी सुनने लगी। और अब ये सब तो गुरुजी करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है। अब उनको जिनसे जोड़ना है वही जाने। एक बार मुझे सपना भी आया था, ड्रीम कि तू कड़ा प्रसाद बना। मैं बना तो लूं कड़ा प्रसाद, पर भोग कैसे लगाऊं? मेरे पास तो अब उनका स्वरूप नहीं है। एक बार ठुकरा दिया, वो मुझे कैसे मिले? फिर एक दिन मेरे बेटे के फ्रेंड की मम्मी ने मुझे स्वरूप भेजा, छोटा वाला स्वरूप। आप यकीन माना संगत जी, बात 7 अगस्त 2024 की है। मैंने एफबी पर मैसेज पढ़ा, बेटी मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मैंने पढ़ा और सोचने लगी, क्या ऐसे हो सकता है? 7 तारीख को गुरुजी आए, लकी नंबर भी, और गुरुजी उसी दिन स्वरूप मेरे घर आया। मतलब खुद गुरुजी आए थे। उनका मैसेज सही था। फिर अगले दिन क्या मैसेज पढ़ती हूँ, बेटी तू ये ना सोचना कि वो सिर्फ स्वरूप है, मैं इसके अंदर हूँ, तू मेरे नाल गल्ला कर। बस फिर क्या, आप सोच ही नहीं सकते मैं कैसे उनसे जुड़ती चली गई। कड़ा प्रसाद बनाया, उनको भोग लगवाया। फिर मुझे ड्रीम में आया था। और फिर मुझे मेरी फ्रेंड आंटी ने कहा कि गुरुजी का स्वरूप टॉवल के ऊपर रखना, पर मैंने तो ग्लास रैक पर हैंडमेड शीट पर रखकर उनको डबल टेप से चिपका दिया था। अब उसने कहा चलो कोई ना, तू टॉवल अब उनके साथ रख देना, क्योंकि गुरुजी ना अपने साथ हैंड टॉवल जरूर रखते हैं। आप यकीन मानो संगत जी, मैं ना ट्यूशन लेती हूँ, और टीचर्स डे था और मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को टीचर्स डे पे टॉवल सेट दिया था। उसमें जो जो छोटे नैपकिन थे वो मैंने उनके पास रख दिया। और देखो सब काम कैसे अपने आप गुरुजी करवाते गए। अब ये बताओ संगत जी, ये भी तो सब उन्होंने ही किया है। सब कुछ आप कर रहे हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मुझे से कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करके शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु संगत जी। मैं तनिष्क सहारनपुर शुक्राना सत्संग अपलोड करना चाहता हूँ। मैंने कभी किया नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ। अगर संगत जी कोई भूल कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, माफ करना और मेरा शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। सबसे पहले गुरु चरणों में मेरी नमस्कार है और गुरु जी से मेरा मंत्र जाप है। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय। हरि ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हरि ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग में गुरु जी से जुड़े हुए भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब मार्च अप्रैल मई में मैं गुरु जी से हुआ था, मतलब मुलाकात हुई थी, पर लेकिन गुरु जी से कोई ऐसा वो नहीं था मेरा।
फिर बड़े मंदिर गुरुजी से मैं थोड़ा-थोड़ा मिलने लगा। फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया। रक्षाबंधन के पहले मैं बड़े मंदिर हो गया, मुझे वहाँ पे बहुत सुकून मिला। फिर वहाँ से आने के बाद में संगत जी मेरा एक काम था, मैं बहुत छोटा काम करता हूँ, मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, तो मैं एक ई-रिक्शा चालक हूँ, तो मैं वो तुड़वा वाला था, तो वो दिक्कत थी, तो मेरा काम हो गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये मेरा काम होना चाहिए, और गुरुजी के आशीर्वाद से वो मेरा काम हो गया। जिस कागज़ को मेरे पे नहीं थे, वो कागज़ मैं 2-3 बार लेके गया डुप्लीकेट बनवा के, पर लेकिन वो काम नहीं हो रहा था। पर गुरुजी से मैंने अरदास की, तो गुरुजी ने मेरा काम पूरा किया। तो ये बस इतना ही था कि मेरी उस गुरुजी से लगा कि हाँ, गुरुजी ने मेरा ये काम किया, गुरुजी ने मेरा सत्संग वो करा। तो यही स्वीकरण सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा सत्संग था, अगर कोई भूल, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, आप मुझे माफ़ करना, सब संगत का माफ़ करें मुझे। मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, हरि ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत नु भला करे मेरी कृपा, सब संगत नु भला करे मेरी कृपा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज नागपंचमी थी और आज जब सुबह मेरी मम्मा बाहर गए प्लांट्स में देख रहे थे, पानी दे रहे थे या कुछ भी कह लो, ऐसे खड़े थे, पता मुझे नहीं पता कब गए बाहर, और वहाँ उनको गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। उनको एक बटरफ्लाई दिखी, फिर दूसरी बटरफ्लाई दिखी, और फिर ना एक बटरफ्लाई जो थी गेट के हमारे ना बाहर बिल्कुल हमारी रैंप पे वहीं पे बैठी रही, वो घूमती रही, बैठी रही। तो मुझे भी बुलाया और मेरी सिस्टर भी बाहर गई मेरे से पहले, पता नहीं कब से बैठी हुई थी। और वो बटरफ्लाई थी ना, बड़ी थी और ब्लैक कलर की थी, और बीच में ना तो थोड़ा टेक्सचर था वाइट और येलोइश था लिटरली। और संगत जी, मैंने भी कहा, गेट भी खोला, मैंने कहा गुरपा अंदर आओ, हाँ हमारे अंदर आओ, बाहर क्यों है कुछ समझ नहीं आ रही थी, और शायद कोई हमारा कष्ट काट रहे थे। गेट खोला भी था और मैं बाहर भी गई कि चलो अंदर, लेकिन अंदर नहीं आए संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं जब मार्केट गई तो मेरे को मार्केट में ही येलो कलर की मिली, और उसके बाद वाइट कलर की भी मिली। उसके बाद जब हमने अंदर पूजा की और हम छत पे गए, तो छत पे संगत जी वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी संगत जी, वो उड़ के ना मेरी मम्मा के दुपट्टे के ऊपर ना बैठ गई, और मेरी मम्मा को पता भी नहीं था, और मैंने ही बताया दुपट्टे पे बैठी है, तो मम्मा बोलते बैठने दे। मेरी मम्मा मतलब के हिले भी नहीं, वो फिर उड़ के चले गई। संगत जी, जब हम दलस्सी डालने जाती है ना, वहाँ पे गए, तो संगत जी वहाँ पे पहुँचने से पहले ही, जब कह लो उस जगह पे पहुँचे, तो उतरते टाइम जब बैठे ही हमें टू व्हीलर पे बैठे थे, बैठे संगत जी हमें हवन की इतनी सुंदर खुशबू आई, हवन की इतनी अच्छी खुशबू आई संगत जी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि आ रही है ये सुगंध, आ रही है हवन की? बोलते हाँ मुझे भी आ रही है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है किसी ने धूप जलाया हो या कुछ किया हो हवन, लेकिन जहाँ पे हम दलसी डालने जाते हैं वहाँ पे संगत जी इतनी बटरफ्लाई और इतने सारे कबूतर थे कि मैं क्या बताऊँ, इतने कबूतर मैंने आज तक कभी नहीं पहले देखे। बटरफ्लाई मैंने फिर देखी है और कबूतर मैंने कभी नहीं देखे। तो फिर वहाँ पे उस जगह पे कोई धूप नहीं था, कोई अगरबत्ती नहीं थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो
संगत जी फिर हम वापस आए और वापस आते टाइम हमें वो स्मेल नहीं आई, हमें सिर्फ जाते टाइम ही आई। और वहीं पे उसके कुछ जैसे हम उतरने वाले थे 2 मिनट पहले वहाँ पे खुशबू आई थी। इतनी अच्छी खुशबू आई थी हवन की। तो कुछ दिन पहले संगत जी मैं जब अकेली किचन में थी, मेरी मदर सो रहे थे और मैं किचन में थी, मुझे इतनी गंदी सी स्मेल आ रही, इतनी गंदी सी स्मेल, और मुझे लगा मुझे अपने आप से भी आ रही है। लेकिन वो स्मेल इतनी थी ना कि मेरा मन खराब होना शुरू हो गया। और संगत जी जब कोई नेगेटिव लोग या कुछ लोग हम पे कुछ करते हैं तो वैसे ही स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल थी। और फिर मैंने ऐसे मैं परफ्यूम नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी-सी डाली क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब हो रहा था उस स्मेल से। और उसके बाद ही मेरी सिस्टर भी गई किचन में, किसी को स्मेल नहीं आई, बस संगत जी मुझे ही स्मेल आ रही थी। और आज गुरुपा ने इतनी अच्छी खुशबू दे दी, इतनी अच्छी खुशबू थी वो, हवन जैसे हवन हो रहा हो वैसी खुशबू थी संगत जी। संगत जी फिर हम जब वापस आ रहे थे, जैसे हम जब जाते टाइम गए तब भी बटरफ्लाई मिली 1-2, और जब हम आए तब भी बटरफ्लाई, और इतने सारे कबूतर थे। जितना भी मैं शुक्राना करूँ गुरुपा के लिए उतना ही कम है। मैं लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। आपके आने से तो मेरी ज़िंदगी में जैसे बहार ही आ गई है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। लख-लख शुक्राना संगत जी, लख-लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी मेरे को आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप से मैं आपके नाम से मंत्र जाप से शुरू करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी 2-3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी। आज आपने कहा जल्दी से शुक्राना करने तो मैं नाराज हो जाऊंगा गुरुजी। गुरुजी आप नाराज हो जाओगे तो कैसे चलेगा बोलिए। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए गुरुजी मैं देखी। गुरुजी आपने कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ, तो शुक्राना कर गुरुजी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आप मेरे घर खुशी से आइए। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं यही मंत्र जाप से आगे की सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु 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 जी, वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा गुरु जी के चरणों में दूसरा सत्संग है, और गुरु बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तो बस मैं कर ही नहीं पाई। आज मैं करने जा रही हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी और भाभी बाजार गए, तो बाजार से आ रहे थे, घर के पास ही थोड़ा सा, वहाँ पे मम्मी की भाभी की स्कूटी जो है थोड़ा उलट गई, और संगत जी मम्मी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मम्मी को बचा लिया, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे घर पे कोई संकट नहीं आने दूंगा।
एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है जो मैंने टाल दिया। तो गुरुजी संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी ने बहुत थोड़े से उसमें टाल दिया, मम्मी को बस थोड़ी-सी चोट आई कोहनी पर। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी। आप बहुत ख्याल रखते हो सबका, ऐसे ही सबका ख्याल रखना और सब पे अपनी ऐसे ही कृपा बरसाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। शुक शुकराना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत पे ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। शुकराना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं आप लोगों को क्या बताऊं। संगत जी मैं बहुत परेशान थी। जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मेरी पगार 20,000 रुपया है और मेरे ऊपर 20 लाख का कर्ज है, जो 3%, 5%, 10% से मैंने बाहर से उठा रखा है और मेरे बैंक से भी लोन है, जो 5-6 EMI मंथली जाती है। अंकल जी का काम नहीं है। संगत जी 7-8 साल हो गए, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। मैं और मेरी बेटी ही घर चलाते हैं। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रहने के लिए मुंबई में हैं। आप लोगों को तो पता है हरियाणा के रीति रिवाज में बहुत खर्च होता है। भांजी की शादी, भांजे की शादी, भात, पीलिया, बहुत कुछ। संगत जी इस चक्कर में बहुत कर्ज हो गया है। अंकल का आंख का ऑपरेशन, सास ससुर के आंख का ऑपरेशन, उनकी बीमारी, दवाई, पानी, बस दिक्कत ही दिक्कत है। पर गुरुजी ने संभाल रखा है। घर खुद का है और दाल रोटी चल रही है। संगत जी पर कोई सेविंग नहीं है। जो कमाते हैं ब्याज वालों को दे देते हैं। नहीं होता है तो फिर ब्याज से पैसे उठाओ और लोगों को दो। अपने लिए कुछ नहीं किया संगत जी, ना तो बच्चों के लिए कुछ किया। बच्चों की पढ़ाई भी आधी में से छुड़ा दी। बहुत दुख होता है, पर क्या करूं, लोगों का ब्याज ही पूरा नहीं होता। इतना प्रेशर बढ़ जाता है संगत जी, 10 तारीख तक क्या बोलूं। बस गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी ये कर्ज खत्म हो जाए और हम 2 रोटी चैन की अपने बच्चों के साथ खाएं। टेंशन में हमारा पूरा परिवार सूख रहा है। बेटी की शादी अप्रैल में है, पर संगत जी कुछ नहीं है मेरे पास, सब गुरुजी पर छोड़ा है। गुरुजी आप ही करोगे जो भी करोगे, मेरा कुछ काम है, गुरुजी से अरदास लगा रखिए। मुझे भरोसा है मेरा काम गुरुजी जरूर करेंगे, अपनी बेटी को मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। संगत जी मुझे जब भी मुसीबत आती है, मैं माता जी को और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे निकालो बाहर, मैं मुसीबत में हूँ। गुरुजी मेरी समस्या का समाधान कर देते हैं। पैसे मिल जाते हैं, लोगों का ब्याज दे देती हूँ, पर रकम जैसे कि जैसे ही है। संगत जी पैसे कहीं ना कहीं पर वही ब्याज पे कर्ज दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुजी कहते हैं जो भी तेरा जा रहा है सब लौटाऊंगा। मेरे गुरुजी से यही अरदास है, हमारी हेल्थ अच्छी रखना और हमारे कमाई में बरकत देना, और गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो ये मुसीबत कुछ नहीं, बड़ी से बड़ी मुसीबत पार हो जाएगी। बस गुरुजी का साथ और आशीर्वाद चाहिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने जो भी दिया है उन सब चीजों के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी बच्चों को गलत रास्ते पर मत जाने देना, अंकल जी का भी काम लग जाए, मेरी कमाई में भी बरकत हो गुरुजी। और गुरुजी जितनी भी संगत बीमारी और कर्ज से परेशान है, गुरुजी सबको इस मुसीबत से निकालो।
गुरुजी हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। इस कर्ज के वजह से पूरा का पूरा परिवार सुसाइड कर देता है, क्योंकि संगत जी ये परेशानी बहुत बड़ी है। घर में भूखे बैठ सकते हैं पर कर्जे में तो बोलूं संगत जी किसी दुश्मन पर भी कर्ज ना हो। बहुत बुरी चीज है ये कर्ज। बस गुरुजी अपनी बेटी को इस कर्ज के जंजाल से निकाल दो। बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ मैं। गुरुजी अपनी बेटी पर कृपा दृष्टि करो। गुरुजी आपने बहुत को तारा है। गुरुजी अब मुझ में भी हिम्मत नहीं रही। थक चुकी हूँ मैं बहुत। गुरुजी आप सभी संगतों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी मेरे लिए अरदास करना। क्या पता आपकी अरदास दुआ बन के लग जाए। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और जो भी मेरे पिछले और अभी के पाप हैं उनके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करने वाले तो आप ही हो गुरुजी। अपनी बेटी को क्षमा करो और अपनी बेटी को इस कर्ज से मुक्ति दिलाओ। संगत जी मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैंने आपसे अरदास लगा रखी है, मेरे सारे कर्जे माफ कर दो गुरु जी। संध्या वेले का समय है गुरु जी, मैं आपसे एक ही अरदास कर रही हूँ। जो ये बंदा मुझे न सुना के गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरु जी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपकी जाते मेरी गली से क्या है, मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं चुप ही रहती, इसीलिए आप कहते हैं ना खुद में गुस्सा करती है, मैं नहीं करती ना, इसीलिए बस तुझे आपके चरणों से ये अरदास है मेरी। मेरे और मेरे परिवार को ब्लेस करिए गुरु जी, और मेरे सारे कर्जों को माफ कर दीजिए। मेरे संगत कुछ करने में त्रुटि हो जाए तो मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको माफ कीजिए। संगत जी और परिवार गुरु जी मेरा मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।